आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेसन के अंदर। एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 को लेकर। द नेम ऑफ चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो लेसन ऑफ दिस चैप्टर। टुडे वी शैल डिस्कस another important topic, that is angle sum property of triangles. Myself Janardhan Dhyani, I welcome you all once again in this video lesson. Now today what are we going to learn? We shall learn the angle sum property of triangles. This property is not new for us. In class 7th and 8th we have learned that sum of all angles of a triangle is 180 degree. In class 8 perhaps we have performed an activity of angle sum property in our mathematics class. Today we shall learn, or we shall prove this property by theorem. We shall learn the concept of exterior angle of a triangle. What are the exterior angles for the triangle? We shall learn that. We shall learn theorems related to angle sum property and exterior angle of triangle. There is a relation between angles of a triangle with the exterior angle. Okay, we shall learn that relation also. So let's start our topic. This is very important property of angles. Theorem 6.7 says the sum of angles of a triangle is 180 degree. किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने क्लास 8 में भी सीखा है, और वहाँ पर हमने मैथ लैब एक्टिविटी के अंदर इसको फिगर में प्रैक्टिकली बना के देखा भी था। हमने एक ट्राइंगल की फिगर बनाई थी, और उस फिगर के एंगल्स को हमने जब अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, यानी तीनों एंगल्स को जब जोड़ा साथ में हमने, तो क्या पाया कि वहाँ पर एक 180 डिग्री का फिगर हमारे पास आ रहा था। अभी इस चीज़ को हम थियोरेटिकली प्रूफ करेंगे थ्योरम में। नाउ वी हैव अ फिगर ऑफ ट्राइंगल, that is this is PQR, a triangle. In this we have three angles, 1, 2 and 3. Angle 1 is at point P, angle 2 is at point Q, and angle 3 is at point R. Now what do we have to prove? We need to prove that angle 1 it means angle P, angle 2 it means angle Q, and angle 3 it means angle R. 1 plus 2 plus 3 it means sum of all the angles is 180 degree. So how can we prove that? First of all, we have to make some construction in this figure. What is the construction? Now, as you know, in our previous part we have learned about corresponding angles and alternative interior angles. We will take help of those angles to find corresponding angles and alternative interior or alternative angles. We should have parallel line and transversal line. जैसा आपने देखा था अपने पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में, कि व्हाट इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कब मिलते हैं? जब दो पैरेलल लाइन हो या दो लाइन हो, उनको एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करे, तो ये अल्टरनेटिव एंगल मिल जाते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। व्हाट विल यू डू? वी विल मेक कंस्ट्रक्शन। लेट अस ड्रॉ अ लाइन XPY पैरेलल टू QR, XPY पैरेलल टू QR through the opposite vertex P as shown in figure. Now this is our new figure. As you can see in this figure, we have drawn a line XPY parallel to PQR, parallel to line QR, and this line XY is going through point P. Okay, now in this figure what do we have? First of all, we have 4 plus 1 plus 5. All these angles, sum of all these angle is 180 degree, as you can see from the figure, because XPY is a line. और एक लाइन में अगर इस प्रकार से हम लोग अलग अलग एंगल बना दें, तो हमने पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल में, ये सारे एंगल कैसे एंगल हैं? एक लाइन को दिखा रहे हैं नीचे, तो इस लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये 180 हो गया। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. This can be proved from the figure. Again, XPY is parallel to QR, and PQ and PR are transversal. This XPY is parallel to QR, and in the figure PQ, it means this line PQ and PR, it means PQ and PR are transversal. So what do we have? Then for angle 4 is equal to angle 2. This angle 4 will be equal to angle 2, pair of alternate angles, because ये इस तरह की शेप में बन रहे हैं ना, ये अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, XPQ and PQR. It means angle 4 is equal to angle 2. Similarly, angle 5 is equal to angle 3. Now angle 5 is equal to angle 3, and angle 4 is equal to angle 2. Angle 5 it means this angle, and angle 3 it means this angle are alternative angles, and this angle and this angles also pair of alternate angles.
So 4 is equal to 2 and 5 is equal to 3. Now we have 4 is equal to 2 and 5 is equal to 3. We will put the value of 4 as 2 and 5 as 3 in this equation. What do we have now? अब हमने जब 4 की वैल्यू रख दी 2, तो हमें क्या मिला? यहाँ मिल जाएगा 2 + 1 और 5 की वैल्यू कितनी? एंगल 3, ये मिल गया. एंड यही हमें प्रूफ करना था कि 1 + 2 + 3 is equal to 180 degree. It means sum of angles of a triangle is always 180 degree. This is angle sum property of a triangle. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. एक्सटीरियर एंगल फॉर अ ट्राइंगल. एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, आउटर. तो एक ऐसा एंगल जो ट्राइंगल के बाहर बन रहा हो, पर किससे बन रहा हो? वो ट्राइंगल्स की लाइन से बन रहा हो. तो कैसे बनेगा वो? अब इस फिगर को देखिए आप. इस फिगर में पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल. पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल है. हमने क्या किया? इस क्यू आर को एक्सटेंड किया इस तरह से, क्यू आर एस. अब जो ये एंगल है, दिस एंगल जो बन रहा है एक्सटेंडेड क्यू आर से, एक्सटेंडेड क्यू आर और पी आर से जो बन रहा है ट्राइंगल के बाहर, बिकॉज इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ट्राइंगल. So this angle PRS is called exterior triangle. Side QR is produced to point S, as I discussed earlier. QR is produced to point S, so angle PR is called exterior angle of triangle PQR. ठीक है, of triangle PQR. Similarly, we can draw another two exterior angles like this. हमारे पास ये ट्राइंगल है अगर इस तरह से, और ये तो हमने इसको इस तरह से अब एक्सटेंड किया. अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली अगर इस लाइन को इधर एक्सटेंड करें तो दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल. अगर इस लाइन को इधर एक्सटेंड करें, दिस इज ऑल्सो अनदर एक्सटीरियर एंगल. यानी किसी भी लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, किसी भी तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, और उस एक्सटेंडेड लाइन और एडजेसेंट लाइन, ट्राइंगल की एडजेसेंट लाइन के बीच बनने वाला एंगल विल बी न एक्सटीरियर एंगल. नाउ तो इस ट्राइंगल, अब देखिए फिगर में 3 + 4, 3 + 4 is 180 degree, as you can see linear pair of angles. Okay, also we know that angle 1 + angle 2 + angle 3 is equal to 180 degree from angle sum property. ये जो तीनों अंदर के एंगल हैं 1, 2 and 3, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है. So it means this will be equal to this. From equation 1 and 2 we can write that angle 4 is equal to 1 + 2. ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ये 3 + 4 is equal to 1 + 2 + 3. ओके, तो 1 प्लस ये सब एंगल्स हैं, 1 + 2 + 3 is equal to 3 + 4. ये सब एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3, एंगल 4. एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी एंगल 1 + 2 is equal to एंगल 4. ये देखिए एंगल 1 + इक्वल टू एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया ना. तो अब हमें क्या पता लगा कि जो एंगल 4 है, व्हाट इज एंगल 4? दैट एक्सटीरियर एंगल. द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंड दिस रिजल्ट कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस थ्योरम, थ्योरम 6.8. If a side of a triangle is extended, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angle. इस एंगल 4 के लिए, एंगल 4 के लिए, ये एंगल 4 है, इसके लिए 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो इससे दूर हैं, यानी लगा हुआ नहीं है ये, तो इसके साथ एडजेसेंट है. एडजेसेंट की बात नहीं करनी है अपने को, जो इससे अलग हैं, अपोजिट हैं, तो ये 2 अपोजिट एंगल्स हो गए. सिमिलरली अगर हम इस फिगर को इस तरह ड्रॉ करते यहाँ पर, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होता. हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया, ये दिस इज आवर एक्सटीरियर एंगल. वैल्यू ऑफ दिस एंगल विल बी वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज 2 एंगल्स जो इससे दूर हैं. सिमिलरली अगर इस फिगर को हम इस तरह ड्रॉ करते और एक्सटीरियर एंगल यहाँ बनाते, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी सम ऑफ दीज 2 एंगल्स. यानी कि एक्सटीरियर से जो दूर एंगल्स हैं उनका सम एक्सटीरियर के सम के एक्सटीरियर के वैल्यू के बराबर होता है. साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, देन द exterior angle so formed is equal to sum of 2 interior opposite angles. Now we shall
Apply these theorems or concepts to solve question from exercise 6.3, that is last exercise of this chapter, and this is first question. In figure 6.39, sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. If SPR is equal to 135 degree and PQT is equal to 110 degree, find PRQ. Let us see the figure. This is the figure. Once again read the question. Side, this is triangle PQR and side QP, side QP, this is QP is extended to point S. देखो इसने कहा QP, इट मीन्स ये Q से P की ओर एक्सटेंड करनी है. अगर ये लिखता PQ तो नीचे की ओर एक्सटेंड होती है, लेकिन इसने कहा QP, दैट्स वाई इट इज़ एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पॉइंट P एंड अहेड, आगे जा रही है. सिमिलरली RQ फ्रॉम R टू Q वी हैव टू एक्सटेंड इट अप टू पॉइंट T. तो RQ को एक्सटेंड किया, QP को एक्सटेंड किया, QP को एक्सटेंड किया S तक और RQ को एक्सटेंड किया T तक. इस तरह से दो एक्सटीरियर हमें एंगल मिल गए 135 और 110 डिग्री पे. वी नीड टू फाइंड एंगल PRQ. हमें ये वाला एंगल निकालना है और हमें अंदर के किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं पता है. ओके, वी नो ओनली द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल. नाउ ये पता है हमको, और ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. दैट्स वाई therefore angle SPR, what is SPR? This angle of 135 degree will be equal to angle PRQ, that is this angle, and angle PQR, क्योंकि इस एंगल के लिए इससे दूर आने वाले इंटीरियर एंगल्स ये और ये होंगे. तो PRQ प्लस PQR इज इक्वल टू SPR फ्रॉम थ्योरम 6.8. सिमिलरली फ्रॉम थ्योरम 6.8 PQT इज इक्वल टू एंगल QPR. अब इसके लिए कौन से दो एंगल दूर हो जाएंगे? तो हो जाएंगे QPR, इट मीन्स दिस एंगल एंड PRQ दोनों के लिए आएगा. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन एंगल्स की वैल्यू को रख देंगे. अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं. क्या कर देते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, एंगल 1 एंड 2. तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई और राइट हैंड साइड में ऐड हो गई. दिस विल बी SPR प्लस PQT, यहाँ आ गया PRQ प्लस PQR और QPR प्लस PRQ, ये आ गया. यहाँ से क्या मिला? 135 प्लस 110 डिग्री. PRQ इसको हमने अलग रखा और ये इन तीन एंगल्स को हमने साथ में ले लिया. अब ये तीन एंगल्स कैसे एंगल देखिए? PQR, QPR, PRQ. PQR, QPR and PRQ. All these three angles are interior angle of a triangle. Or from angle sum property we know that sum of these angles, it means all the angles of triangle, interior angles of the triangle is 180 degree. So इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री जोड़ के हो जाएगी. दिस विल गिव 180 डिग्री प्लस ये जोड़ के हो गया 245. और फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड इजिली द वैल्यू ऑफ PRQ. सो द वैल्यू ऑफ PRQ इट इज़ नॉट 180 डिग्री, इट इज़ 1800 नहीं है, 180 डिग्री है. ओके, PRQ plus 180 degree is equal to 245 degree. That means PRQ is equal to 245 degree minus 180. That means PRQ is 65 degree. So the value of angle PRQ is equal to 65 degree. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. इस फिगर से हम एंगल P भी निकाल सकते हैं और एंगल Q को भी निकाल सकते हैं. कैसे? ये पूरा एंगल 180 का है तो 180 में से 110 माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली ये पूरा एंगल 180 का है, 180 में से 135 माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये एंगल निकल जाएगा. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन. इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ एंड PS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T. लेट अस सी द फिगर. दिस इज फिगर. PQ line, PQ and RS. These two lines PQ and RS are intersecting at point T at this point. Then PRT and R क्या गिवन है? PRT is equal to 40 degree and RPT is equal to 95 degree. ये एंगल गिवन है. और TSQ is equal to 75 degree. Find SQT. हमें ये एंगल निकालना है. We need to find this angle XQT. To find XQT, from figure we see that PTS and exterior angles. This angle PTS. ये कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है. किसके लिए? ट्रायंगल PRT के लिए. इस ट्रायंगल के लिए PRT के लिए एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये एक्सटेंडेड RT और PT के बीच बन रहा है. इसका एक्सटेंड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी
सिमिलरली एस क्यू टी के लिए भी कैसा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। क्यों? क्योंकि एस क्यू टी की लाइन क्यू टी को एक्सटेंड करें पी तक, तो इस एक्सटेंडेड क्यू टी और टी एस के बीच बनने वाला एंगल दोनों के लिए क्या है, तो क्या मिलेगा हमको, पी टी एस इज इक्वल टू टी पी आर प्लस पी आर टी। अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल पी आर टी की और इस एक्सटीरियर एंगल की, तो इसका जो वैल्यू है इन दो के इक्वल होगी, इसके और इसके इक्वल होगी। तो ये हमने यहाँ लिख दिया टी पी आर प्लस पी आर टी। फॉर दिस ट्राइंगल, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू इसके और इसके इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पर रख दिया इसको इस तरह से, पी टी एस इज इक्वल टू टी एस क्यू एंड एस क्यू टी। अब इधर भी पी टी एस, इधर भी पी टी एस। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, दैट्स वाई राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। तो क्या मिलेगा हमको, टी पी आर प्लस पी आर टी इज इक्वल टू टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी। यही लिख दिया हमने यहाँ पर, टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू टी पी आर प्लस पी आर। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ एंगल्स दैट वी नो। द वैल्यू ऑफ टी एस क्यू इज 75 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एस क्यू टी पता नहीं, निकालना है अपने को, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ टी पी आर इज इक्वल टू टी पी आर 95 डिग्री, वैल्यू ऑफ पी आर टी इज इक्वल टू 45 डिग्री। बस अपने को इक्वेशन मिल गई, यहाँ से अपने को एस क्यू टी की वैल्यू मिल जाएगी। 95 प्लस 40 इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एस क्यू टी इज इक्वल टू 135 माइनस 75, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर। देखिए, फिगर को देखने के बाद आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसमें आपको हेल्प देंगे थ्योरम्स और एक्सियम्स। अगर आपको थ्योरम्स याद है, आपने फिगर को ठीक से ऑब्जर्व किया, तो आप बड़े आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को निकालने के और तरीके भी हो सकते थे। हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के इस एंगल को पता करते, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकालते, क्योंकि हमें ये मालूम है, ये हमने मालूम कर लिया, और 180 से इन दोनों का सम माइनस करके हम इसको भी निकाल सकते थे। तो सेम क्वेश्चन को अनदर मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हेल्प ली वर्टिकली एक्सटीरियर एंगल की, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो आसान लगता है आप ऐसा करिए। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.44 द साइड QR of triangle PQR is produced. Let us see the figure first. This is the figure where we have a triangle PQR. This is triangle PQR, and here we have extended line QR to point S, and we have made bisectors of two angles. Angle PQR का जो bisector है that is Q, this line from Q to T, and angle PRS that is exterior angle of PQR, इसका जो bisector है that is line RT, both the points meet at point T, both the lines meet at point T, यहाँ पर मिलते हैं। We have to prove that angle QTR means QTR, this angle QTR is equal to half of QPR, इसको प्रूव करना है। सो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दैट। आप अपने को पता क्या है, ये पता है कि ये एंगल, कौन से दो एंगल, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। वाई? बिकॉज दिस इज बाइसेक्टर ऑफ PQR। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। वाई? बिकॉज RT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। ये अपने को पता है। नाउ लेट्स प्रोसीड। एक्सटीरियर PRS इज इक्वल टू PQR प्लस QPR। PRS ये है एंगल PRS, ये एक्सटीरियर है किसका, ट्राइंगल PQR का, दैट्स वाई दिस विल बी इक्वल टू QPR एंड PQR, हम जानते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 1/2 से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए हाफ QPR चाहिए, ये है QPR, तो इसके हाफ को करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को हाफ से, तो वट दिस विल बी फाउंड हाफ PRS इज इक्वल टू हाफ PQR प्लस हाफ QPR। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट TRS इज इक्वल टू TQR प्लस हाफ QPR। अब देखो हाफ ऑफ PRS, व्हाट इज एंगल PRS, दिस इज एंगल PRS, इसका हाफ यानी इसका बाइसेक्टर, दिस कैन बी रिटन एज TRS because we know that this angle PRS is bisected by the line RT, तो we can write PRS is equal to TRS और PRT, तो हमने ले लिया TRS, so half of PRS will become TRS. Similarly,
half of PQR will become TQR. कैसे? This half PQR will be equal to TQR because QT line is the bisector of this angle PQR. इसका bisector है, तो this angle will be equal to half of PQR will be equal to TQR. तो हाफ ऑफ PRS को हमने बना दिया TRS, हाफ ऑफ PQR को बना दिया हमने TQR, और हाफ ऑफ QPR अपनी जगह है. ओके, TRS एंड TQR ले लिए. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अनदर important thing, in triangle QTR, this is also a triangle QTR, and for this triangle, this angle TRS is an exterior angle. For the triangle QTR, look at the figure, QTR, angle TRS is an exterior angle, and from the property of exterior angle, this TRS will be equal to the sum of two opposite interior angles. It means QTR and TQR. So TRS will be equal to TQR plus QTR. This is an equation which gives the value of TRS. This was also an equation which gives the value of TRS. Now as you can see, equation 1 and equation 2, both the left hand sides are equal, therefore right hand side will be also equal. तो इनको इक्वल रख देते हैं. TQR plus QTR यानी कि ये वाला यहाँ से आ गया, एंड TQR प्लस हाफ QPR यहाँ से आ गया. यहाँ से क्या हुआ, TQR से TQR कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल गया, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR. दैट वी हैव टू प्रूव. तो यहाँ से इस तरह से प्रूफ हो गया. हमने TRS की वैल्यू निकाली दो ट्राइंगल से, एक निकाली PQR से और एक निकाली QTR से. और TRS दोनों के लिए क्या था, कैसा एंगल था, एक्सटीरियर एंगल था. हाँ, TRS का डबल PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल था, और TRS ट्राइंगल PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल था. तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किया. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. आई होप आपको इस समझ में आया होगा. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द प्रीवियस 2 videos, I hope you will solve the chapter number 6. If you have any difficulty, you can ask us, you can ask your question on comment section. Thanks for watching this video.